Good morning, everyone. This is the third part of May Current Affairs 2020, and welcome to AJ Channels. So, as I was speaking, that May is full of a lot of events that has taken place in the month of May. So, let's start today's session with the question: Who became the first Indian to win the Fed Cup Heart Award? Fed Cup Heart Award. Sania Mirza. We know that she has been married to Shoaib Malik, Pakistani all-rounder, and she hails from Hyderabad. And she has won this Fed Cup Heart Award for her successful return to the court. Court means tennis court, post motherhood. She had a baby, and after that, returning in a successful manner has earned her this reward. Okay. Moving up to the next question. Hari Vasudevan has passed away. He was an historian on European and Russian politics and history and died of COVID-19. Another important person because he also died of COVID-19. Name Hari Vasudevan, historian. What is the name of counseling helpline launched by HRD Minister of Central University of Odisha? The name is Bharosa. It stands for trust. In Hindi, trust बोलते हैं भरोसा को. अगर सही से हम लोग गो थ्रू करेंगे तो पता चलेगा कि ट्रस्ट मतलब भरोसा. और मैंने उड़ीसा की कुछ डिटेल्स दिए हैं, जैसे कि कैपिटल भुवनेश्वर, गवर्नर गणेशी लाल एंड CM नवीन पटनायक, चीफ मिनिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which city's airport was voted by customers as the best regional airport in India and Central Asia for the third time in 4 years at the 2020 World Airport Awards? And the airport is Bengaluru Airport. Okay. FIFA Under 17 Women's World Cup has been rescheduled to February 17 and March 7, 2021. Which country will host the event? India will be hosting this event, and previously also it was scheduled to happen in 2020 in India. So the dates have been changed, but the venue remains the same. Which state's Sohrai Khovar painting has bagged the geographical indications tag? Jharkhand. And what does this painting? It involves the use of local and naturally available soils of different colors in the area of Hazaribagh district of Jharkhand. Okay. Moving on. This May month I was telling you previously yesterday when I recorded the first part that this May month has been the year of month of geographical tag. So there is another one. Which state's Tilia Rumal has bagged the geographical indications GI tag? तेलंगाना के ये तिलिया रुमाल GI tag मिला इनको. Its cloth involves complex handmade work with cotton loom, which can be only created by using traditional handloom. मतलब हाथों से ही बनाया जा सकता है. ये लूम की खासियत यही है कि ये सिर्फ हाथों से ही बनाया जा सकता है विदाउट यूजिंग एनी मैकेनिकल मीन्स. मतलब कि कोई भी मशीन से नहीं बनाया जाएगा या बन नहीं सकेगा. मतलब ये इसका ट्रेडिशनल है कि तेलिया रुमाल जो है ये हाथों से ही बनता है, यही उसकी खासियत है. विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ एड्रेस्ड द इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय एसोचैम? एसोचैम का फुल फॉर्म नेक्स्ट पेज में मैंने दिया है. एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. तो ये जितेंद्र सिंह बने हैं.
ये हमारे यूनियन डोनर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है, जितेंद्र सिंह। नेम द मिनिस्टर हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअल शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीट ऑन कोविड-19। तो कौन से मिनिस्टर जिन्होंने वर्चुअल मतलब ही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन मिनिस्टर के मीट में हिस्सा लिया, उनका नाम है S जयशंकर। वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। और SCO के कुछ डिटेल्स मैंने आप लोगों को नीचे स्क्रीन में आप देखते होंगे कि हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना है, फाउंड हुए हैं, SCO फाउंड हुए हैं 26 अप्रैल 1996 एंड इनके फाउंडर्स कंट्रीज़ है चाइना, रशिया, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके स्टैटिक जीके के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ते, विच सिटीज़ पुलिस हैज़ गॉट इंडियाज़ फर्स्ट थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर to enhance social distancing in partnership with the Indian Robo Store Group। तो किस सिटी पुलिस को ये इंडिया का पहला थर्मल कोरोना कॉम्बैट, कोरोना से लड़ने वाला हेड गियर, मतलब कि वो एक हेलमेट टाइप का हेड गियर मतलब ही होता है कि जो सर में पहनते हैं, ठीक है। तो वो इन्हेंस करेगा, वो और बढ़ा देगा जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग इसको मेंटेन करने में मदद करेगा। और ये इंडियन रोबो स्टोर ग्रुप से इस सिटी ने पार्टनरशिप किया था, तो वो सिटी का नाम है न्यू दिल्ली। और उस हेड गियर को एक नाम भी दिया गया है TCCH, थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर, ठीक है। अब इसका खासियत क्या है कि द वेयरर ऑफ दिस हेड गियर, अगर वो हेड गियर पहनेगा तो वो एबल टू स्कैन द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, जो कि बढ़ा हुआ बॉडी टेम्परेचर है, जो कि मेन रीज़न हो रहा है कोविड पेशेंट्स के लिए कि राइज इन टेम्परेचर नॉर्मल से 99.6 या 7 डिग्री F भी पहुंच रहा है तो उसको हाई टेम्परेचर माना जा रहा है। हाई टेम्परेचर इज़ दी, बोला जा सकता है कि ये प्राइम काउज हो रहा है, मतलब सबसे पहले हाई टेम्परेचर ही को नाप रहा है वो थर्मल रेडिएशन वाला गियर से, ठीक है। तो इस गियर को अगर आप पहन लेंगे हेड में तो वो आप उसको 10 से 15 मीटर की दूरी से ही उस टेम्परेचर को नाप सकेंगे। तो ये सेफ़ डिस्टेंस है। ऐसे तो 1 मीटर 3 मीटर बोल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बस, बट ये 10 से 15 मीटर की दूरी तक को भी तय कर लेगा, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। सॉरी, screen rotation problem some of time. Okay, now continue. Which company has won VMware 2020 Regional Partner of the Year Award? This is just an static one. Anunta Technology in Maharashtra, Mumbai. Which bank has fully disbursed $1 billion United States dollar emergency assistance loan to India to help it to contain the spread of COVID-19? तो किस बैंक ने पूरा $1 बिलियन USD का इमरजेंसी के तौर पे इंडिया को लोन दिया है? असिस्टेंस मतलब होता है हेल्प, तो ताकि वो कोविड के स्प्रेड को रोक सके या फिर कंटेन कर सके एक जगह। तो ये इसका आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैंने कुछ डिटेल्स प्रोवाइड किया है, जो कि फाउंडेड इन 2014, हेडक्वार्टर इनका भी शंघाई चाइना में है, CEO इनका बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, कुंदपुर वमन कमात। फाउंडर्स कंट्रीज़ चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। आप देखते होंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो फाउंडर कंट्रीज़ है वो काफ़ी सार्क कंट्रीज़ से मिलते जुलते हैं, ठीक है। Who has been appointed as the new chairman of CBSE? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मनोज आहूजा। मनोज आहूजा अपॉइंटेड हुए हैं न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE। CBSE का फुल फॉर्म
सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, ये कुछ और चेयरमैन्स ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सिडबी के मोहम्मद मुस्तफ़ा, सीबी के अजय त्यागी, नबार्ड के चिंतला गोविंदा रजूलू जो कि आगे आएगा, एनएचआरसी एचएल दत्तू, यूआईडीएआई जो आधार कार्ड में लिखा रहता है यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला, उनके चेयरमैन हैं पंकज कुमार। तो आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड होप, अ पोर्टल फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ टू गेट जॉब्स। तो किस स्टेट के सीएम ने किया है? उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। होप का मतलब है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, होप का ये फुल फॉर्म है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो आंसर है वी विद्यावथी। ये 1991 बैच कर्नाटका कैडरे ऑफिसर रह चुकी हैं। Which states Arumbavur wood cravings has been given the geographical indication tag by the Geographical Indications Registry? तो ये मिला है तमिलनाडु को। Which city's native works has been given the geographical indication tag by the Geographical Indications Registry? ये है थंजावुर। और नेटिव स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? इन्हें डिज़ाइन किया जाता है विथ स्मॉल नीडल्स, ब्लेड्स, सीजर्स एंड नाइफ्स की मदद से। ये कुछ छवि टाइप के होते हैं। स्क्रिप्चर्स मतलब ये होता है कि कुछ पेंट टाइप का, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में मोहनजोदारो के बहुत सारे स्क्रिप्चर्स सामने आए थे। तो स्क्रिप्चर्स माने कुछ भी जो पेपर में या वुड में या केव में इंस्क्राइब रहते। ठीक है, आगे बढ़ते। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं हर एग्ज़ाम्स के लिए, और ये 2020 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है। इंडिया का रैंक रहा है 76th। ये 2 कदम ऊपर चले हैं। इससे पहले मतलब 2019 का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 78 थे। और ये मैंने कुछ रैंकिंग दिए इंडिया के डिफरेंट इंडेक्स के जो अभी तक का आ चुका है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में 144th में है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 120th में, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 84th में, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 142nd में, और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 40th रैंक पे इंडिया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, आप अपने नोट्स में लिख लें। In which city India Post has paid a tribute to migrant workers by releasing a special postal cover dedicated to them? इंडिया पोस्ट ने किस सिटी में एक ट्रिब्यूट देने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स को एक स्पेशल पोस्टल कवर बनाया है? तो वो सिटी हमारा मुंबई है। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस हैज स्लैश्ड इंडियाज़ प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट टू 1.2%। तो यूएन ने भी अब स्लैश किया इंडिया का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट, जो कि 1.2 इन्होंने बताया है। और इंडिया का जीडीपी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल है 21। मूडी ने क्या बताया? मूडी भी एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, उन्होंने बताया कि 0.2% है। इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बोला 3.5% है, आईसीआरए ने बोला 2% है, वर्ल्ड बैंक ने बोला 1.5 से 2.8 के आसपास रहेगा। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो हम लोग कल भी पढ़े थे, एक चीज़ का आंसर था, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, उन्होंने कहा कि ये 4% रहेगा। Who has been awarded the Vice Admiral GM हिरांदनी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020? तो आंसर देखते हैं इसका। लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार ऑफ द एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल ऑफ द सदर्न नेवल कमांड इन कोची। इनको क्या मिला है? इनको GM हिरांदनी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी मिला है। ठीक है जी। Which state government has launched
Matir Smriti scheme to utilize 50,000 acre barren land in 6 districts for income generating activities like horticulture and pisciculture. तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है मतिर समृद्धि स्कीम, जिससे वो यूज़ करेंगे 50,000 एकड़ ज़मीन जो कि बैरन है। बैरन माने होता है बंजर, जिसमें कुछ उगता नहीं हो, इनफर्टाइल लैंड। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट में फॉर इनकम जनरेटिंग, मतलब पैसा वगैरह निकले, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, जैसे फ्लावर का कुछ कल्टीवेशन हो, या पिस्की कल्चर, फ्लावर और फिश। वेस्ट बंगाल भी आ गए हैं फॉर्म में अब। तो इनके 6 डिस्ट्रिक्ट नेमली हैं बांकुड़ा, बीरभूम, पुरुलिया, झारग्राम, वेस्ट बर्धमान एंड वेस्ट मिदनापुर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है BCS के हिसाब से, WBCS के एग्ज़ाम्स में, मेंस के लिए। अभी तक तो मेंस रुका हुआ है, लेकिन मेंस होगा तो ज़रूर, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए क्या होता है। खैर, ये वाला क्वेश्चन और एग्ज़िट ऐप वेस्ट बंगाल का जो कल मैंने रिलीज़ किया था, या कल मैंने अपलोड किया था यूट्यूब में, तो वो यही था कि वेस्ट बंगाल का एक एग्ज़िट ऐप भी है जो कि स्ट्रैंडेड हो चुके हैं। यहाँ पर से वो कहीं नेटिव प्लेस में जाना चाहेंगे, तो उसके लिए एक ऐप, एग्ज़िट ऐप नाम का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने निकाला। आगे बढ़ते हैं। नेम द ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD अंडर NMEICT स्कीम। तो ई गवर्नेंस कौन सा प्लेटफॉर्म है जो डेवलप किया गया? समर्थ। ये सिर्फ नाम इम्पॉर्टेंट है, आप इसका डिटेल भी पढ़ सकते हैं। मैंने प्रोवाइड नहीं किया क्योंकि डिटेल फाउंड नहीं हो सक रहा है इसका। आप इसके बारे में खुद पढ़ लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डिटेल इतना है कि आप एक प्रेजेंटेशन में नहीं डाल सकेंगे, मतलब ह्यूज। Who has launched गोल प्रोग्राम फॉर डिजिटल स्किलिंग ऑफ ट्राइबल यूथ? तो कौन लॉन्च किया है देखते हैं। अर्जुन मुंडा। ये कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स। और गोल का मतलब क्या है? गोल का फुल फॉर्म गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। Which state government has announced 2 new schemes, स्नेहर पुरुष एंड प्रोचेस्टा। नाम सही लग रहा है, हमारा बंगाल होगा, नाम में ही बहुत कुछ हो जाता है। खैर, ये हमारे वेस्ट बंगाल का स्कीम है। इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत वर्कआउट किया तो पता चला कि प्रोचेस्टा जो है वो प्रोवाइड करेगा वेजेस, डेली वेजेस टू डेली वेज वर्कर्स, जो कि डेली काम करते हैं, जैसे कि मिस्त्री वगैरह होते हैं, राजमिस्त्री वगैरह, जो कि जिनका डेली का काम रहता है। तो उनको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला है, अभी अनाउंस किया है कि ये 2 स्कीम अभी निकलेगा, तो वो उनको वेजेस दिया जाएगा। और स्नेहर पुरुष मतलब हुआ कि प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स हु आर स्ट्रैंडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेशन। उनको एक सपोर्ट दिया जाए फाइनेंशियली, या फिर सपोर्ट दिया जाए किसी भी वेज से, जो कि स्ट्रैंडेड है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेशन में, वापस आने के लिए एग्ज़िट ऐप के थ्रू या किसी भी तरीके से। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है WBCS मेंस के हिसाब से। विच कंट्री हैज़ नेम्ड अ स्ट्रीट आफ्टर इंडियन पोइट रविंद्रनाथ टैगोर ऑन हिज 159th बर्थ एनिवर्सरी रिसेंटली? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर WBCS 2020 मेंस। ये जो है रशिया ने, Israel ने, Russia and Israel are 2 countries always looking for India. I don't know why, but they are doing a lot of work, at least to get attention to their countries. Nevertheless, sorry, my mistake. I was trying to remember. So this is Israel is the answer. Israel has named a street in Tel Aviv as Rehov Tagore. Reho means street, means Tagore Street. What percentage of Reliance Jio's platform has been bought by General Atlantic for rupees 6,598.38 crore rupees?
देखते हैं कितना लिया है, 1.34%। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग शेयर होल्डर है जो फेसबुक ने लिया है जियो का, 9.99% रुपीज़ आपके सामने है। सिल्वर लेक ने 1.15% लिया है और एस बेस्ड विस्ता इक्विटी पार्टनर्स ने 2.32% लिया है। देवेश रॉय का देहांत हो गया हाल ही में। वो क्या थे? वो एक ऑथर थे। ऑथर मीन्स लेखक। उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है फॉर हिज नोवेल तीस्ता पारेर ब्रिटांडो। आगे चलते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, ये तो नाम आप जानते ही होंगे, इन्होंने भी बहुत कुछ किया। ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हुए फिर से, ये 5th टाइम इनका हुआ। और इजराइल के प्रेसिडेंट का मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। प्रेसिडेंट है यहाँ के रियूवेन रिवलिन एंड कैपिटल जेरूसलम, करेंसी शेकेल। Who is appointed the head of 5-member panel formed by Andhra Pradesh government to probe Vizag gas leak and to submit the report in 1 month? जो वाइजैक में गैस लीक हुआ था उसके बारे में 5 मेंबर का एक पैनल बना है जो बताएं कि गैस लीक क्यों हुआ, क्या कैसे हुआ, इसमें क्या किया जाए। कार्रवाई के लिए 1 महीना का वक्त दिया गया है उनको रिपोर्ट देने का। तो वो हेड का नाम है नीरब कुमार प्रसाद। Who has been appointed as the new managing director of Jammu and Kashmir Bank? जुबैर इकबाल। और मैंने कुछ लिस्ट ऑफ सीईओ दे दिए हैं अदर बैंक्स के। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ चेंज हुए हैं, संजीव चड्डा। बैंक ऑफ इंडिया अतानु कुमार दास। इंडियन बैंक के पद्माजा चुंदुरु एंड यूको बैंक के अतुल कुमार गोयल। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें पॉज करने के बाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी? वुहान आप जानते होंगे कि ये वही जगह है जहाँ से कोविड स्टार्ट हुआ है, ठीक है, या स्प्रेड हुआ है। तो ये बुक का कौन ऑथर है? फैंग फैंग, चाइनीज़ी ऑथर लग रहा है। ही हैज़ रिलीज इन द बुक इन ई बुक फॉर्मेट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक फॉर्मेट। ऐसे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है तो वो बुक को इलेक्ट्रॉनिक बुक फॉर्मेट में लॉन्च किए फैंग फैंग ने। और इनका पब्लिशर का नाम है हार्पर नॉन फिक्शन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चरण पादुका कैंपेन to provide shoes or slippers for the migrant laborers passing through the state? ये चरण पादुका कैंपेन मतलब कि उनको शूज़ और स्लीपर्स दिया जाएगा जो माइग्रेंट वर्कर्स उस स्टेट से गुजरेंगे। वो स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश, जिसका कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर का नाम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर का नाम है लालजी टंडन। आगे बढ़ते हैं। नेम दिस साइक्लोन ओवर सेंट्रल पार्ट्स ऑफ साउथ बे ऑफ बंगाल विच हैज़ रिसेंटली अफेक्टेड स्टेट्स ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। हमारा आप जानते हैं उसका नाम आम्फन है और ये नाम थाईलैंड ने दिया है आम्फन। इस पेज को तो आप प्लीज़ पॉज कर ले और इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। साइक्लोन माहा कहाँ का है? ये अभी हाल फिलहाल में अरेबियन सी को क्रॉस किया है। अरेबियन सी से स्टार्ट हुआ है, क्रॉस किया लक्षद्वीप को। बुलबुल पिछले बार आया था बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज़ में। साइक्लोन केआर है साउथ गुजरात सौराष्ट्र में। साइक्लोन सराई फिजी में। टाइफून कमूरी फिलीपींस में। टाइफून फक्साई टोक्यो जापान में। टाइफून फनफोन फिलीपींस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज हर एग्ज़ाम के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका अलग नाम है NAREDCO? राजेश गोयल आंसर है। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। आप सिंपली कुछ क्वेश्चंस को आप सिंपली ऐसे ही याद कर सकते हैं कि कौन अपॉइंट हुआ, बस अपॉइंटमेंट में डाल दें। हु हैज़ लॉन्च्ड नेशनल अभ्यास ऐप फॉर JEE मेन एंड नीट एस्पायरेंट्स? तो किसने लॉन्च किया है जॉइंट एंट्रेंस के मेन और नीट के एस्पायरेंट्स के लिए? तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन्होंने लॉन्च किया है।
Which country has approved the new political map which includes India's Lipu Lake, Kalapani and Limpiadhura under its territory amidst a border dispute with India? मतलब अपने कंट्री का एक नया पॉलिटिकल मैप नेपाल ने निकाला है, इसका आंसर नेपाल है, जिसमें उन्होंने लिपू लेक, इंडिया के लिपू लेक, काला पानी एंड लिम्पियाधुरा को अपने टेरिटरी में डाला है। हालांकि अभी मिड्स ऑफ अ बॉर्डर डिस्प्यूट माने अभी भी उनके बीच में नेपाल और इंडिया के बीच में एक झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिस्प्यूट चल रहा है। तो नेपाल का कुछ एडिशनल डिटेल्स, कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपालीज रुपी एंड पीएम प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली। Who will take charge as chairman of WHO Executive Board on 22nd May? हर्षवर्धन, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, ये सक्सीड करेंगे डॉक्टर हिरोकी नाकातानी ऑफ जापान को। किस पोस्ट के लिए? WHO के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के लिए। Who has been appointed as the chairman of National Bank फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो हमने पहले भी एक बार एक लिस्ट में आया था नाबार्ड के बारे में, तो गोविंद रजुलू चिंताला आंसर थे। राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रत्नाकर मतकरी जो कोविड-19 के शिकार हुए वो बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड एन इनिशिएटिव सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस? तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया जम्मू एंड कश्मीर ने। जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो उसका कैपिटल जम्मू है विंटर के लिए, श्रीनगर है समर के लिए, और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मी अन्नपूर्णा एन इंक्लूसिव प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स एंड भूमिपुत्रास? तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये इंक्लूसिव प्रोग्राम लॉन्च किया? देखते हैं। महाराष्ट्र ने, जिसका कैपिटल मुंबई है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है, और चीफ मिनिस्टर अभी हाल फिलहाल में ही उद्धव ठाकरे हुए हैं, मार्च के लास्ट में या फिर मार्च के लास्ट में या स्टार्टिंग में हुए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड दीदी व्हीकल सर्विस फॉर रूरल वुमन? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने दीदी व्हीकल सर्विस लॉन्च किया है? नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, दीदी का नाम आते ही हम लोग सोचते हैं ममता दी है, लेकिन इसका आंसर मध्य प्रदेश है। दिस व्हीकल सर्विस इज़ कम्प्लीटली फ्री फॉर 29 विलेजेस। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने डिटेल से निकाला 10 ग्राम पंचायत में, जो कि पितलावद डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ झबुआ है, वहाँ पर 29 विलेज में ये व्हीकल जो है सर्विस करेगा फ्रीली। फ्रीली से मुराद फ्री, नॉट ऑफ एनी कॉस्ट। Who has launched राजीव गांधी किसान न्याय स्कीम फॉर फार्मर्स इन छत्तीसगढ़? तो राजीव गांधी की धर्मपत्नी सोनिया गांधी लॉन्च्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 21 मई, और कांग्रेस की लीडर भी है। विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन लेंडर टू अलाउ वीडियो KYC? KYC का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। तो किस बैंक ने अलाउ किया है, पहला लेंड किया है कि वो वीडियो से KYC कराया जा सकता है? तो वो बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। Who has been appointed as the new chief economist and vice president of World Bank? Another important question for any exams. कैरमेन रेनहार्ट, ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, लेडी हैं, ये अपॉइंट हुई है न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के पोस्ट के लिए। मोएकेट्सी मजोरो स्वन इन एज दी कंट्रीज न्यू PM, कौन से कंट्री के न्यू PM बने हैं? ये लेसोथो, एक यूरोपियन कंट्री है। बहुत सारे कंट्री है जो कि हम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ये लेसोथो जो है ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, जिनका कैपिटल है मसेरू और करेंसी है लेसोथो लोटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके के लिए। विच स्टेट CM हैज़ इनॉग्रेटेड एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम? ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया ये स्कीम? मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है, और मध्य प्रदेश के कुछ और लॉन्च किए हुए स्कीम्स मैंने यहाँ लिखे हैं,
दीदी व्हीकल, चरण पदुका, FIR आपके द्वार, जीवन शक्ति योजना। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करिए। मैं जल्द ही 31 मई के एंड में इसे अपलोड कर लूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।